नमस्कार, दिस इज शिव शंकर माटे, पीजीटी केमिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा. Dear student, today we will study about the chapter first of 10th class, that is chemical reaction and equation. So let us enjoy the chemical reaction and equation. We all are familiar with some of the chemical reactions and the equation in the previous classes. So if we are talking about the chemical reaction, so we can say what is a chemical reaction. So we can take some other example or certain examples around us. There are so many chemical changes takes place around us. Simply we can say any of the chemical changes takes place into the nature is known as chemical reaction. Means whenever a chemical change occurs around us are representing in terms of any reaction, so that is called chemical reaction. Is it? So simple, in a simple manner we can say a chemical reaction is actually the chemical changes takes place into the reaction. Wherever it is represented in the form of any reaction or equation, then we can say it is a chemical reaction and its equation. So when a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. Means जब भी कोई chemical changes होंगे तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिएक्शन के फॉर्म में और कहा जाएगा कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. जैसे आप देखते हैं हम खाना खाते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर भोजन पचता है. हम कुकिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट कुकिंग प्रोसेस वी ऑब्जर्व देयर इज सम केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. वन इज फिजिकल चेंज ऑल्सो देयर, बट देर इज सम अनदर केमिकल चेंज, दैट मीन्स देर इज चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कि वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे. फोटोसिंथेसिस देखते हैं हमारे आसपास में, या फिर आप देखते हैं कलर चेंजेस होना किसी भी चीज़ों में. बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में आप देखते हैं कलर चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है. सो ऑल दैट आर एक्चुअली द केमिकल रिएक्शंस. For example, if we are burning the magnesium ribbon, so when we are burning a magnesium ribbon, it burns with oxygen and convert into a white color ash, that is of magnesium oxide. Let us see here in the figure. We will do this experiment when the classes will start in the school, but here we can understand इफ़ वी आर टेकिंग अ मैग्नीशियम रिबन. मीन्स अगर हम छोटी सी मैग्नीशियम मेटल की स्ट्रिप ले और उसे पहले साफ़ करें अच्छे से ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है या जो इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाए और वो प्योर हो जाए. एंड देन इफ़ वी स्टार्ट इट ऑन बर्निंग ऑन अ बर्नर, देन वी ऑब्जर्व इट बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लैम कि वो एक बहुत चमकीली फ्लैम के साथ में बर्न होती है और उससे जो ऐश निकलती है वो वाइट कलर की ऐश वगैरह होगी. और वो ऐश एक्चुअली दैट इज ऑफ अ न्यू कंपाउंड फॉर्म हियर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. In another experiment we can observe here that if we are preparing the hydrogen gas, so we should take the granules of zinc metal, and when dropwise some H2SO4 or HCl gases are added into it, there is formation of hydrogen gas takes place. So this is another chemical reaction, or we can say a chemical change takes place. So when hydrogen gas is formed, means we can say how the hydrogen gas is formed here by the reaction of zinc metal with the dilute sulfuric acid. So it forms a new compound or a gas, that is hydrogen gas. Is it? So formation of hydrogen gas is also a kind of chemical reaction or chemical chain. तो जितना भी हम आसपास देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, उनमें से बहुत सारे चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कारण होते हैं या केमिकल चेंजेस के कारण. लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कोई चेंजेस जो हुआ है वो केमिकल है या नहीं है. इज देयर एनी केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस अराउंड अस और नॉट. सो देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस by which we can determine whether a chemical reaction has taken place or not. So to observe a chemical reaction, the following observation help us in determination of the reaction. Means if there is change in the state, means उसके अपने फिजिकल स्टेट में अगर कोई चेंजेस होता है तो भी हम कह सकते हैं वहाँ पर कि वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है. या कलर चेंजेस हो जाए तब भी कहा जाएगा कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है. और एनी काइंड ऑफ गैस इज इवॉल्व, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस. एज इन previous activity we observed there is formation of hydrogen gas takes place. Is it clear? Then change in temperature. change in temperature means अगर हम बर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को तो क्या होगा,
उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देयर में बी चेंज इन टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ द कैंडल, बर्निंग ऑफ द वुड, दैट इज ऑल्सो द केमिकल चेंज। चेंज इन स्टेट आप देखते हैं, द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क कैसा था, लिक्विड था, बट व्हेन इट गेट चेंज इनटू द कर्ड, सो देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, इट बिकम्स, we can say, semi solid, is it? Change in color, that can also be observed in many of the reaction. There is formation or of during we can say during the chemical reaction there is formation of different color, as in case of crackers. When crackers are burned, it gives the different colorful components or different colors, is it clear? So all these are the measurement, or we can say indications of केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन द नेचर। सो हम कलर में, स्टेट में कोई गैसेस इवोल्यूशन हो रही है, कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उससे पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे यहाँ देखिए हम इसको 4 उसके जो इंडिकेशंस है वो है, वेन एवर वी आर बर्निंग द कैंडल, सी हेयर, वेन एवर वी आर बर्निंग द कैंडल वी कैन ऑब्जर्व हेयर दैट देर इज formation of carbon dioxide takes place and some water vapor. So there is formation of carbon dioxide, that is a gas, it burns, means there is change in the temperature. When chemical solution is just we are adding with the lemon juice, or we are adding some lemon juice into it, so it will be decolorized, is it? So there is change in the color. Same gas evolution during the formation of hydrogen by the action of zinc and H2SO4. Same in case of the temperature, if we are heating any substances, then there will be formation of क्या कहा जाएगा, some new compound along with the rise in temperature or lower in the temperature. So all these are the cases of chemical change. So these are the sign for chemical change. We can understood by this slide. देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देर आर 4 मेन साइन दैट इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जैसे कलर चेंज, कि कोई कलर, जैसे आपने देखा है वहाँ पर लिटमस टेस्ट वगैरह आप पढ़ते, ब्लू लिटमस चेंज टू द रेड, रेड लिटमस चेंज टू द ब्लू ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस। या आप फलों में देखते हैं, व्हेन द फ्रूट्स आर, वी कैन से, व्हेन द फ्रूट्स आर स्मॉल एंड unripened, so color is almost green, but when it becomes ripened, so they becomes yellow or they again their own color, is it? ऐसे ही सॉलिड, लिक्विड या गैसेस हो सकती है कोई कलर, यहाँ स्टेट ऑफ मैटर। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, की आप देखते हैं बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह में कोई नई गैस वगैरह प्रोड्यूस होते रहती है, ठीक है। देन चेंज इन द टेम्परेचर, तो ये 4 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, इज इट? सो by observing this sign we can easily understand is there any chemical reaction takes place or not. Now there is another word will come, that is called chemical equation. हम ये तो समझ गए कि नेचर में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, बट उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? सो टू रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज वी आर जस्ट explaining it in terms of chemical reaction and chemical equation. So chemical equation can be expressed in 2 ways, that is word equation and another will be the formula equation, ठीक। तो एक वर्ड इक्वेशन हो सकता है और दूसरा फॉर्मूला। अगर हम उसको वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल वर्ड इक्वेशन। बट व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग एनी केमिकल चेंज विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज, देन इट विल बिकम्स अ केमिकल रिएक्शन, इज इट? वर्ड इक्वेशन होगा और केमिकल रिएक्शन को हम वहाँ पर क्या कहेंगे? दैट इज केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा, इज इट? और फॉर्मूला इक्वेशन भी कह सकते हैं। सो लेट अस सी अबाउट वर्ड इक्वेशन, इज इट? केमिकल इक्वेशन कैसे? अभी हमने एक एक्टिविटी पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन बर्न वाला, इज इट? वेन एवर वी आर टेकिंग अ मैग्नीशियम रिबन, then what we observe there is formation of the magnesium oxide. So when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it get converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form a quite long. अगर हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा. So it is better to write in a shorter form, and the simplest way to write this chemical change into shorter form is a word equation. यानी जो हम इतना सारा देख रहे हैं कि जो चेंजेस हुआ है, पहले हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, फिर उसको साफ़ किया, फिर बर्न किया, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ, फिर एक डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ, फिर एक ऐश बनी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इतना सारा लिखने से बेहतर है कि अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें और सब कुछ समझ में भी आ जाए। सो दैट शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली द वर्ड इक्वेशन. सो लेट अस सी अबाउट द वर्ड इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड.
Here we can write it as magnesium plus oxygen give rise to magnesium oxide, and here there is a arrow between the these two reactant and product. So यहाँ पर हमने magnesium लिया हुआ है, यहाँ oxygen लिया है, that is combined and it forms the magnesium oxide. Is it clear? So there is one is reactant, another one is product. Now let us see about the chemical reaction, some information about the chemical reaction. अभी केमिकल इक्वेशन समझ में आया, इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की. सो इन अ केमिकल रिएक्शन देयर आर सर्टेन कंपोनेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ वर्ड इक्वेशन और इन टर्म्स ऑफ द केमिकल फार्मूला, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट मेनली. वन इज रिएक्टेंट, अनदर वन इज प्रोडक्ट. लेट अस सी हियर व्हाट इज अ रिएक्टेंट. सो जो भी सब्सटेंस रिएक्शन शुरू होने के पहले से एग्जिस्ट करता होगा उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल reactant. That means reactants are those substances that exist before a chemical change, is it, or before a chemical reaction to taken place. यानी जब भी रिएक्शन शुरू होने के पहले अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाएगा? रिएक्टेंट. जैसे वहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था प्रीवियस रिएक्शन में, दैट आर द रिएक्टेंट इन दैट रिएक्शन. वाइल अनदर वन इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होगा? जो वहाँ पर सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, न्यू सब्सटेंस बना हुआ है ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज, उसको क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट. सो यू कैन से अ न्यू सब्सटेंस और मोर देन वन सब्सटेंस में बी देयर, सो यू कैन से द न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल चेंज आर कॉल्ड प्रोडक्ट. उसे क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट वगैरह हम कहते हैं. जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द प्रीवियस रिएक्शन वी सी देयर द MgO, that is magnesium oxide, is formed as a product. Then let us see chemical equation. तो chemical equation क्या है अभी? तो हमने कहा यहाँ पर it is actually indicates the reactant and product present in a reaction. Chemical equation क्या होगी? That includes the reactant and product in the reaction are called chemical equation. एक हमने कहा था word equation और दूसरी है chemical equation. So actually word equation and chemical equation are equivalent, but word equation consists of only word format. That means वहाँ पर हम फॉर्मूले नहीं लिख रहे. But in a chemical reaction, actually it is represented with the reactant and product with their chemical formula. So a chemical equation representing the reactant and product and their relationship, they are separated by a arrow. Let us see here. We can observe here. This is the reactant and this is separated by the arrow. Is it? क्या ऑब्जर्व किया आपने वहाँ पर कि वो सेपरेट है किसके द्वारा? एक हेडेड एरो के द्वारा, और जिसमें आप देख रहे हैं अनदर साइड यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट हमको देखने को मिल रहा है. इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द केमिकल इक्वेशन. नाउ एक वर्ड इक्वेशन क्या शो करती है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, सो वी कैन से अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस. क्या शो करता है यहाँ पर? अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम. अभी देखा हमने कि एक तरफ आप क्या देखते हैं, इन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर पुटिंग द रिएक्टेंट्स, वाइल इन द राइट हैंड साइड वी आर पुटिंग द प्रोडक्ट. इफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज देयर देन वी कैन यूज अ प्लस साइन. क्या यूज करते हैं? प्लस साइन. लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को यूज करते हैं या रखते हैं और प्लस साइन का यूज करते हैं इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट देयर. एंड इन द राइट हैंड साइड वी आर writing the products. If more than one products are there then we are using the plus sign between them. And a headed arrow pointing towards the product means वो reactant से product की reaction को show करता है. जिस तरफ product होगा उसका head किस तरफ होगा? product की तरफ. Means from reaction to the product. So it shows the change of reactant to the product. Is it clear? So this is about the chemical reaction. Let us see the example of magnesium reacting with the oxygen to form magnesium oxide. Is it clear? So here the Mg and O2 combine to form the magnesium oxide. Clear हो रहा है यहाँ पर इतना? तो ये क्या है? That is about the chemical equation. Magnesium plus oxygen giving the magnesium oxide. This is called chemical equation. But अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है? नहीं. ठीक. तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है. क्या होता है? बैलेंस करना. क्योंकि हमने 9th में पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द
the mass of reactant must be equal to the mass of product, or in other word we can say, in case of chemical equation, the number of atoms in the reactant side of each element must be equal to the number of atoms present in the right hand side, means in the product side, इज इट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये हमें बैलेंस करना जरूरी होगा. सो कैसे बैलेंस करेंगे वो इसके बाद हम देखेंगे. सो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. ये आपको गिन लेना है, काउंट कर लेना है कि ये यदि ऑलरेडी बैलेंस है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इफ देर इज शॉर्टेज ऑफ एलिमेंट एंड वी कैन से देर इज डिफरेंसेज इन द बोथ साइड, देन वी हैव टू बैलेंस इट. सो इफ नॉट, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation. मतलब वो उसका बेसिक फ्रेमवर्क है. जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि हड्डी का ढांचा होता है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, ऐसे ही हम कहेंगे यहाँ पर दिस इक्वेशन, दिस वी कैन से दिस इक्वेशन इज एक्चुअली द, क्या कहा जाएगा, दिस इज द इक्वेशन दैट इज एक्चुअली द स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन, इज इट. तो इसको अब हमको बैलेंस करना है, ये बेसिक फ्रेमवर्क है. नाउ बाय कीपिंग दिस एज अ स्केलेटल फॉर्म वी कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, इज इट. सो लेट अस सी अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. सो आज इतना ही देखते हैं. हम कल एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बैलेंसिंग देखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इज इट. जनरली 90% चांसेस होते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आता ही है. Okay, so see it and enjoy it and note down the doubts. If you have, then ask. Okay, okay, bye. Tomorrow we will study about the next topic. Okay, bye.